بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اسپیشل ٹی وی اسٹوڈیو سے مقامی معلومات کے ساتھ میں ہوں محمد سلیمان خان۔ اوکاڑا کی تاریخ میں پہلی بار ڈپٹی کمشنر اوکاڑا ڈاکٹر ذیشان حنیف کی جانب سے محکمہ تعلیم کے کلاس 4 ملازمین میں عمرے کے ٹکٹس کی تقسیم کے سلسلے میں تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں ڈپٹی کمشنر اوکاڑا، اسسٹنٹ کمشنر دیپال پور، اسسٹنٹ کمشنر رینالا خورد، چیف ایگزیکٹو آفیسر ایجوکیشن سمیت ضلع بھر سے محکمہ تعلیم کے افسران و اہلکاروں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ کاشف ندیم کی رپورٹ میں تفصیلات دیکھتے ہیں۔ اوکاڑا کی تاریخ میں پہلی بار ڈپٹی کمشنر اوکاڑا ڈاکٹر ذیشان حنیف کی جانب سے محکمہ تعلیم کے کلاس 4 ملازمین میں عمرے کی ٹکٹس کی تقسیم کے سلسلہ میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں ڈپٹی کمشنر اوکاڑا، اسسٹنٹ کمشنر دیپال پور، اسسٹنٹ کمشنر رینالا خورد، چیف ایگزیکٹو آفیسر ایجوکیشن سمیت ضلع بھر سے محکمہ ایجوکیشن کے افسران و اہلکاروں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ ڈپٹی کمشنر اوکاڑا ڈاکٹر ذیشان حنیف نے اپنی زیر نگرانی محکمہ تعلیم کے کلاس 4 کے ملازمین سے عمرے کے ٹکٹس کی قرعہ کروائی۔ عمرے کا ٹکٹ جیتنے والے کلاس 4 ملازمین میں نائب قاصد عامر شہزاد، مالی غلام سرور اور مالی محمد افضل شامل ہیں۔ ڈپٹی کمشنر اوکاڑا ڈاکٹر ذیشان حنیف نے تینوں ملازمین کو عمرے کی ٹکٹ پر مبارکباد دی کہ ملازمین میں عمرے کے ٹکٹس کی تقسیم عمل خیر ہے اور یہ روایت ہر سال جاری رہنی چاہیے۔ انہوں نے محکمہ تعلیم کے حکام کو فوری طور پر ملازمین کے عمرے کے اخراجات اور دیگر لوازمات مکمل کرنے کی ہدایت جاری کی۔ تقریب کے اختتام پر ڈپٹی کمشنر اوکاڑا نے گورنمنٹ ہائی اسکول اشرف المدارس کے کلاس 3 کے طالب علم پر دستِ شفقت رکھتے ہوئے اس کی حوصلہ افزائی کی اور ذاتی گراں سے ننھے طالب علم کو 5,000 روپے بھی دیے۔ گوجرانوالہ میں عام انتخابات 2024 کے لیے مسلم لیگ نون نے قومی اسمبلی کی 5 اور صوبائی اسمبلی کی 12 نشستوں پر اپنے امیدوار نامزد کر دیے۔ بیورو چیف غضنفر شاہ کی رپورٹ میں تفصیلات دیکھتے ہیں۔ گوجرانوالہ میں عام انتخابات 2024 کے لیے مسلم لیگ نون نے قومی اسمبلی کی 5 اور صوبائی اسمبلی کی 12 نشستوں پر اپنے امیدوار نامزد کر دیے۔ مسلم لیگ نون نے عام انتخابات کے لیے ضلع گوجرانوالہ کے امیدواروں میں سے 3 تبدیلیاں کی۔ این اے 80 میں عثمان ابراہیم کی جگہ ان کے بیٹے شاہد عثمان ابراہیم کو دی گئی، اور پی پی 65 سے وقار چیمہ کو آؤٹ اور پیر غلام فرید کی واپسی۔ پی پی 64 سے عمر فاروق ڈار کو الیکشن لڑنے کی اجازت دی گئی۔ ضلع گوجرانوالہ میں این اے 77 میں محمود بشیر ورک اور این اے 78 میں خرم دستگیر خان، این اے 79 میں ذوالفقار علی بنڈر امیدوار نامزد کیے گئے۔ این اے 80 میں شاہد عثمان اور این اے 81 میں اظہر قیوم نعرہ مسلم لیگ نون کے امیدواروں میں الیکشن لڑیں گے۔ پی پی 59 سے بلال فاروق، پی پی 60 سے موسم رؤف مغل اور پی پی 61 سے عمران خالد بٹ اور پی پی 62 سے محمد نواز چوہان امیدوار ہوں گے، اور پی پی 63 سے توفیق بٹ اور پی پی 64 سے عمر فاروق ڈار اور پی پی 65 سے صاحبزادہ غلام فرید نون لیگ کے امیدوار نامزد کیے گئے، جبکہ پی پی 66 سے کیسر اقبال سندھو اور پی پی 67 سے اختر علی خان اور پی پی 68 سے چودھری محمد اقبال نامزد امیدوار ہیں، جبکہ پی پی 69 سے عرفان بشیر گجر اور پی پی 70 سے امان اللہ وڑیچ مسلم لیگ نون کے امیدوار ہوں گے۔ کیمرہ مین عدیل شاہ کے ساتھ غضنفر شاہ، بیورو چیف اسپیشل ٹی وی، گوجرانوالہ۔ پی ٹی آئی حیدرآباد میں ٹکٹوں کی تقسیم پر اختلافات، یوتھ ونگ کے کارکنوں نے لطیف آباد میں انصاف ہاؤس کے باہر دھرنا دے دیا، کارکن دیر تک نعرے بازی کرتے رہے۔ عمران دیسوالی کی رپورٹ میں تفصیلات دیکھتے ہیں۔ حیدرآباد کے لطیف آباد نمبر 2 میں پی ٹی آئی کے دفتر انصاف ہاؤس کے باہر پی ٹی آئی یوتھ ونگ کے کارکنوں کا احتجاج۔ یوتھ ونگ کے کارکنوں نے انصاف ہاؤس کے باہر احتجاجی کیمپ لگا دیا۔ انصاف یوتھ ونگ کے صدر نے احتجاجی کیمپ میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ عام انتخابات میں حیدرآباد ڈویژن میں کسی انصاف یوتھ ونگ کے
कारकुन को NA या PS का टिकट नहीं दिया गया। यूथ विंग के उम्मीदवारों को मुसलसल नजरअंदाज किया जा रहा है, जबकि पार्टी कायद इमरान खान यूथ विंग को अहमियत देते हैं। इमरान खान का स्लोगन था कि जनरल इलेक्शन में 25% कोटा यूथ विंग के उम्मीदवारों को दिया जाएगा, मगर यूथ विंग के उम्मीदवारों को नजरअंदाज किया जा रहा है, इसीलिए हम एहतजाज पर मजबूर हैं। इस मौका पर PTI यूथ विंग के कारकुनों ने नारेबाजी भी की। मिंचनाबाद में सियासी गहमा गहमी शुरू हो गई। शौकत लाले का ग्रुप, सैयद असगर शाह ग्रुप और बन्नावाला ग्रुप की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। तीनों ग्रुप आज़ाद हैसियत से इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। कायदीन ने इलाके की खिदमत और तरक्की का अज़्म जाहिर किया। तैयब महमूद मेकन की रिपोर्ट में तफसीलात देखिए। मिंचनाबाद में इलेक्शन 2024 की गहमा गहमी शुरू हो गई। शौकत लाली का ग्रुप, सैयद असगर शाह ग्रुप और बन्नावाला ग्रुप ने इत्तेहाद कर लिया। तीनों ग्रुपों की चक अमीर में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना था कि हम आजाद हैसियत से इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। शाह ग्रुप के सैयद असगर शाह NA 160, शौकत लाली का ग्रुप के मियां इनाम लाली का PP 238 और बन्नावाला ग्रुप के मियां राशिद मलकू का PP 237 से मुतफिका उम्मीदवार आजाद हैसियत से सामने आ गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कायदीन का कहना था कि इलाके में सेहत, तालीम और ज़राए अबलाग के मंसूबों को पाया तकमील तक पहुंचाया जाएगा। इस मौका पर उम्मीदवारों के सैकड़ों वोटर्स ने भी शिरकत की और ढोल की थाप पर भंगड़े भी डाले गए। हल्का PP 238 से मियां शौकत लाले का मरहूम के साहबजादे मियां इनाम बारी शौकत लाले का MPA के उम्मीदवार हैं, जबकि PP 237 से मियां राशिद वट्टू के क्या सियासी अज़ाइम हैं, जानते हैं चौधरी मोहम्मद इस्माइल से। जी बिल्कुल, जैसा कि पंजाब भर में इलेक्शन की तैयारियां अरूज पर हैं, हल्का PP 237 में भी मिंचनाबाद में भी इलेक्शन की तैयारियां अरूज पर हैं और सियासतदान भी गहमा गहमी पर हैं। हमारे साथ जनाब हल्का PP 237 के MP मियां राशिद महमूद मलको का वट्टू साहब मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं सर क्या हल्के की पैगाम को मैसेज देना चाहेंगे, और आप इलेक्शन जीत जाने के बाद सियासत, खिदमत या कोई और मंशूर है, क्या कहना चाहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। मेरे बहुत ज़्यादा मंशूर हैं कि सबसे पहला मेरा मंशूर ये है कि जहाँ पे जो कोई शख्स भी महफूज नहीं है, खा वो काड़ू का ग्रुप के साथ है, मैं दावे से कहता हूँ कि वो लोग भी महफूज नहीं है उनके शर से, उनके फसादात से, और वो अपनी इज्जत बचाते फिरते होते हैं, इसलिए वो बेचारे छुप छुप कर काड़ू का ख़ानदान के साथ चलते हैं। और इंशाअल्लाह ताला मेरा ये दावा है कि अल्लाह ने हमारे इस ग्रुप को कामयाबी दी तो फिर इनकी सियासत मिलिया मेट कर देंगे इंशाअल्लाह ताला। मोहब्बत की, शराफत की और इज़्ज़त की सियासत आएगी, बदमाशी की सियासत हमने ख़त्म करनी है इंशाअल्लाह। जी ये थे मियां राशिद महमूद मलको का वट्टू साहब। हमारे साथ मियां इनाम बारी शौकत लाले का साहब भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे जो कि हल्का PP 238 के MPA की सीट लड़ रहे हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। सर सियासत क्यों, जो कि मियां शौकत अली लाले का साहब जो कि बहुत ही माशाल्लाह उन्होंने सियासत में ही शहादत जो कि नोची है, और आपने सियासत में ही क्यों आना चाहा? सियासत से बड़ी इबादत कोई नहीं। सियासत को सही तरीके से किया जाए तो इससे बड़ी इबादत नहीं है। मैंने अपने वालिद के जनाजे वाले दिन ही कहा था कि मैं अपने बाप के नक्शे कदम में चलूँगा और आवाम की खिदमत करूँगा, और उनके दोस्त, अहबाब, बुज़ुर्ग, वो मेरे भी दोस्त हैं, भाई हैं, बुज़ुर्ग हैं, और उनके साथ कंधे के साथ कंधा चला के मैं चलूँगा। ये मेरा वादा था हल्के की आवाम से, अपने वालिद शौकत अली लाले का के दोस्तों से और उनके अजीज़ों से, और ये मैं वादा निभा रहा हूँ। जो मैंने अपनी ख्वाहिश पीछे रखी, ये मिंचनाबाद की आवाम के लिए पीछे रखी। असगर शाह साहब एक शरीफ इंसान है, इस बात में कोई शक नहीं, और इसी शराफत की सियासत को कायम करने के लिए मेरे वालिद शौकत अली लाले का ने शहादत, इसी मिशन पे शहादत उनको नसीब हुई। शौकत लाले का, शौकत लाले का, राशिद मलको का, असगर शाह। सर आप आज़ाद उम्मीदवार लड़ रहे हैं, जीत जाने के बाद आप कौन सी पार्टी ज्वाइन करेंगे?
जीत जाने के बाद अवाम जिस तरफ आवाज़ करेगी उस तरफ जाएंगे इंशाअल्लाह। उम्मीदवार बराए कौमी असम्बली हल्का NA 110 मौलाना मोहम्मद आसिफ मुआविया सियाल की सियासी बसीरत। उम्मीदवार बराए सूबाई असम्बली हल्का PP 130 से फौजी मोहम्मद रमज़ान खान को खान अमीर अब्बास खान सियाल के हक में दस्तबरदार करवा दिया। चौधरी मोहम्मद ताहिर असलम की रिपोर्ट में तफसीलात देखते हैं। हल्का PP 130 में एक और मुस्बत सियासी पेशरफ्त। उम्मीदवार बराए कौमी असम्बली हल्का NA 110 मौलाना मोहम्मद आसिफ मुआविया सियाल ने अपनी सियासी बसीरत को बरूए कार लाते हुए घेलपुर से उम्मीदवार बराए सूबाई असम्बली हल्का PP 130 फौजी मोहम्मद रमज़ान खान को इसी हल्का से उम्मीदवार बराए सूबाई असम्बली खान अमीर अब्बास खान सियाल के हक में दस्तबरदार करवा दिया। फौजी मोहम्मद रमज़ान खान ने अपने पैनल के कायद मौलाना मोहम्मद आसिफ मुआविया सियाल के हुक्म पर घेलपुर में मुनक़दा एक तकरीब में बाज़ाब्ता अमीर अब्बास खान सियाल के हक में दस्तबरदार होने और अपने पैनल की मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया। कैद का हुक्म था, मेरा छोटा भाई है और मैं आज उन्हीं के हुक्म पर अमीर अब्बास खान सियाल साहब के हक में बैठने का ऐलान करता हूँ। बहुत अच्छे। इस मौका पर खान अमीर अब्बास खान सियाल ने फौजी मोहम्मद रमज़ान खान का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि फौजी मोहम्मद रमज़ान खान के इस इक़दाम की बदौलत हमारा पैनल एक मजबूत तरीन पैनल बनकर उभरा है। चौधरी मोहम्मद ताहिर असलम, स्पेशल TV, अहमदपुर सियाल। फैसलाबाद रोड शम्स मिल के करीब डंपर और हाइस में तसादुम के नतीजे में 2 अफराद जाम बहक और 5 अफराद जख्मी हो गए। हादसा धुंध के बाइस पेश आया। हाइस चनियोट से फैसलाबाद जबकि डंपर फैसलाबाद से चनियोट की तरफ जा रहा था। रेस्क्यू 1122 की इमदादी टीमों ने जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करने के बाद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल चनियोट मुंतकिल कर दिया। SSP उमरकोट अब्दुल खालिक पीरजादा के अहकामात पर कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। कत्ल के मुकदमे में नामजद 3 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए, जबकि एक मुलजिम बगैर लाइसेंस असलहा और एक हुदूद ऑर्डिनेंस के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। और आज की दुनिया में कौन सा मुल्क सबसे बड़ा दहशतगर्द है? स्पेशल TV के प्रोग्राम स्पेशल टॉक में ब्रिगेडियर सैयद गजनफर अली शाह ने बता दिया। इस हवाले से उनका मजीद क्या कहना था, आइए देखते हैं। अमेरिका सबसे बड़ा दहशतगर्द यानी अयानत मुजरमाना अमेरिका सबसे बड़ा दहशतगर्द है आज की दुनिया में। और जो बाइडन हिटलर का भी बाप बना हुआ है। जिस तरह वो इजराइल को हथियार दे रहे हैं, जिस तरह बरतानिया कर रहा है, शर्म की बात है। मतलब कोई इंसानियत भी होती है और दावा इंसानी हकूक का करते हैं कि कुत्ता मर जाए तो हम खड़े हो जाते हैं। वहां 24,000 मुसलमान मर चुके हैं और जो बाइडन मारी जा रहा है उनको। और अगर कोई कहीं जा रहा है तो इतनी बुरी हालत में है कि जिसकी हद कोई। आपको पता है एंथनी ब्लिंकन पिछले हफ्ते अपने घर से निकला है तो लोगों ने उसकी अपना गाड़ी के ऊपर खून फेंका है। वो अमेरिकन थे जिन्होंने उसके ऊपर खून फेंका है। तो बात यह है कि गूगल पे जाएं, गूगल पे एक साइट है, वहाँ से आपके जो सुनने वाले हैं उनको मैं ये कहना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट कर रहे उस पर वोट करें। हाँ, उस पे वोट करें। जब आप जाएंगे तो सर आप बता सकते हैं साइट तो वो लोग उसको करें। मेरे ध्यान से उसका नाम निकल गया, लेकिन जब आप गूगल पे टाइप करेंगे ICJ केस इन साउथ अफ्रीका, ICJ केस, तो वो गूगल की तो नाज़रीन ये नोट कर लें, ICJ बनता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो उसके ऊपर वोट करें, गूगल पे करें ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, तो उसमें आपको जो साउथ अफ्रीका केस बिफोर ICJ। स्पेशल TV से फिल वक्त इतना ही। मजीद मालूमात के लिए देखते रहिए स्पेशल TV।